So, Yeah. you have a question. Justin here from Indian Express. My question is to all the filmmakers on stage, Alankrita, Anis. So towards your right, here. Yeah. Yeah, my question is to all the filmmakers on stage, Alankrita, Anisa, Rajan DK. What are some of the worst lines or paragraphs from a bad review of your film that has stayed with you? Something so nasty that you felt like speechless. याद रहता है? I don't know. I don't remember. They'll take off their shirts. It's tattooed. I wish I'm glad I don't remember those. But the only I can't. Can you? या मुझे एक याद है कितने कितने सुनने हैं बता. वेलकम का जो रिव्यू एक आया था कि ये फिल्म जब शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस के पास एक आदमी खड़ा हुआ है जो स्क्रू ड्राइवर लेके उनके दिमाग में धीरे धीरे स्क्रू डाल रहा है और जैसे जैसे फिल्म बढ़ती जाती है वो स्क्रू आपके दिमाग में घुसता चला जाता है. तो ये मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी थी, तो ये याद है मुझे. ये मैं कहीं डालूंगा डायलॉग. Alankrita, for you and Rajan DK, come on, there must be some line. I remember that spooning line that has just stayed with me. Where they were like, why does Gul Panag's character spooning Purab's character? I think it just has stayed with me because I thought it was so odd and why that, like lots of, yeah. I have a question for the former critic sitting next to me, actually. I'm just curious, has he gone over to the dark side or was he on the dark side and has gone over to the light side? What is he? This is Raja Sen, who is a co-writer on Chup, who's a former famous critic. Wow. I'm really curious. Has he moved to the dark side or have you moved to the bright side? I think it's up to all of you now to see what we've done and to see if that's the right move for me or whether I need to go back and figure out better how to judge what I'm doing. Hi, this is Priyanka. My question is to all the filmmakers. Bollywood bashing has become quite fashionable these days, on the internet especially. With the numbers throwing in that the flop picture hai, bekar picture hai. So as filmmakers, do you sometimes get a sense or does it get difficult for you to discern which critic is coming from a space of just criticizing the film, or does it or coming from a space of really an agenda to, push this boycott Bollywood or bash Bollywood or ban Bollywood propaganda which is going on? Or do you also get a sense of that this is paid? Because these are the things that we keep By hearing. now, everybody, most of the people who are not just filmmakers, even audience who are clued in, they all know who's saying what and why. So you kind of pick and choose. You want for entertainment, you watch the funny guy from whoever, the YouTube guy who's generally fakifying, and you listen to it and laugh. And you want a good one, you go to somebody else. So you kind of know where each one is coming from. You're discerning right then and there. So I think it's okay. I mean, people talk and already it's a paid review. You paid the article. Or, so for me, it doesn't matter. And I feel like a lot of people, it shouldn't matter really. You pick and choose what you want to see. What kind of news you want to follow, what kind of people you want to follow is what I feel. This one is addressed to the critics. Any one of them or all three of them can answer, four of them can answer. Do film critics have favorites? And if they do, how easy or how difficult it is to distance themselves from that favorite while reviewing a film? Everyone has favorites in the sense that I like watching this particular filmmaker's work because she is an exciting filmmaker and I want to see what they're doing next. I'm looking forward to seeing what they're doing next. But having said that, professionally, when you watch the film and you walk out of the film and you assemble your thoughts, you do your research, everybody's process is different. For a professional film critic, it's not very difficult to acknowledge your biases first and then उसके बाद आप लिखें जो आप लिखना चाह रहे हैं और कहें उसको अपनी ऑनेस्टी से. कौन से कहते हैं ऑनेस्टी से लिखना पड़ेगा और उसके अलावा कोई चारा नहीं है. मुझे अलंकृता का काम बहुत पसंद है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी सारी फिल्में देखने के लिए. वो फीमेल फिल्म मेकर है, अपनी कहानियाँ कहती हैं. पर जब मुझे उनका काम पसंद नहीं आता तो उसको क्यों पसंद नहीं आया उसको भी कॉन्टेक्चुअलाइज करना इम्पॉसिबल काम नहीं है. वो हो जाता है ऑनेस्टी के साथ. जितने आप प्रोफेशनल हो उस पर निर्भर करता है.
I think. एक I सवाल had one more Would you add question. to I had a that? question for the critics, Would if I could Anupama add ask, to that? please. Then that's fine. या चुप हो गया बस, done. एक सवाल Thank मैं you हिंदी very में much. पूछना चाहता हूँ। जी एक हिंदी फिल्म का आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर डिबेट हो रही है और अनीस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हिंदी में भी थोड़ा सी बीच में बातचीत की। मुझे हिंदी आती भाई। और तो मुझे एक सवाल, दो सवाल थे एक्चुअली। एक तो ये सवाल कि जब हिंदी फिल्म के ऊपर एक सेमिनार हो रहा है, उसमें कोई हिंदी फिल्म समीक्षक आपके मंच पर क्यों नहीं है? दूसरा सवाल मैं फिल्मकारों से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई फिल्म समीक्षक आपकी फिल्म की समीक्षा, फिल्म खराब हो सकता है उसकी वजह से लिखे या कोई और भी कारण हो सकता है, बाद में जब वो आपका इंटरव्यू कभी लेने आता है, क्या मन में वो खलिश तब भी रहती है? मैं थोड़ा इसका जवाब दूं। जी कोमल जी। मैं रिव्यूज़ अंग्रेज़ी में लिखता हूं क्योंकि मैगज़ीन फिल्म इंफॉर्मेशन अंग्रेज़ी में है, अभी ऑनलाइन है, मगर मेरे यूट्यूब वीडियोस और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी का है, तो मैं बोलता हिंदी नहीं, में हूं आपने और कहा लिखता कि आप ट्रेड एनालिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक नहीं है। मैं फिल्म क्रिटिक की बात कर रहा था। मुझे फिल्म रिव्यूअर के तौर पर बुलाया। मैं फिल्म मेकर नहीं हूं, तो मेरा पोजीशन यहाँ पर फिल्म रिव्यूअर का ही है। नहीं, आपने खुद कहा था, इसलिए मैंने सवाल पूछा। इसलिए मैंने जवाब। हाँ। जी बताएं। नहीं, जवाब तो देने दो यार। सवाल ये है कि कोई फिल्म समीक्षक जब आपकी फिल्म की समीक्षा अच्छी नहीं लिखता है और वो जब आपका इंटरव्यू लेने आता है कुछ दिन बाद, तो आपके मन में कोई दुर्भावना होती है क्या? खलिश होती है मन में? नहीं मैं ऐसा होता है कि इंटरव्यू पहले ले लेते हैं। Of course. Sorry, my problem is I would love to. I mean, should I ask the question in English? नहीं, हिंदी समझ में आती है। We'll accuse you. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं भी इंडिया में हूँ लेकिन डिफरेंट स्टेट में से, सो वहाँ से हिंदी इतना पढ़ाई नहीं की हमने, लेकिन इतना सीखा मैंने फ्रेंड्स से, सो नॉट अ प्रॉब्लम. I do. I mean, if there was an agenda or a bitterness or a certain personal feeling that has come into a review for no good reason, I do remember that one reviewer for a while, and I gave up after that because there's no use in keeping bitterness, because I realized later it was done because of a certain specific personal feeling. That's just one odd. कभी होता है, but you can't take him seriously after that, him or her later seriously. So होता है. Sorry about my bad हिंदी. जी, मेरा नाम संजय मिश्रा है और कोमल सर से मेरे को ये जानना था। देखिए, इस बातचीत को थोड़ी दिलचस्प बनाते हैं क्योंकि हम क्रिटिक की बात करें। सर कभी चलिए अभी ये लास्ट कमाल था। Once more. I think I peed my pants a little. The last question was the best.
Guys, everybody, we're starting the film in 5 minutes, so please don't leave. I mean, if you want to just take a quick break, we can come back in 5 minutes, but we're starting the film in 5. Hey, just. दो नंबर म्यूट कर दो. Come on, you're watching the film, no? What? Hey! Who the fuck is this? I didn't recognize you! The long hair, yes. Dude, he is. How are you? Good. How are you? Your hair is gone. Thank you so much, Krita. Not at all. Sorry. What time is the screening? Now, 5 minutes. Oh, sir. I'm excited. Done? Yeah? She's up here. She's in the booth. Oni. Hello, how are you? Good to see you. लाइट स्टैंड निकालना है. Because it's starting, I've come. Hello sir, what do you want to say about Chup? Please say. I can't wait to see it. I can't wait. Movies coming recently. How many movies will come? Oh, just one. I'm just working on all. The film looks amazing. I can't wait to go see the film. So about it, just saying the whole concept and the whole, everyone, the actors, their performances in the trailer looked amazing. So I just can't wait to go see the film right now. So movies going to release soon. What do you Yeah. want to say about the response Just of audience? go watch it and just go see it. And if you enjoy it, go speak about it. So Yeah. about your father and all. My father, so I love him. He does this character the best, and to see him in this intense role after so long, it was just a dream come true for me. Thank you. Thank you. Yeah, on your left, on your left. Sonali, आपके left में. On your left. Sonali, look here. Sonali here. Sonali here. Sonali here.
रोहिणी मैम सेंटर. Rohini ma'am, look here, please. Rohini ma'am, right ला. Ma'am, look here. Thank you. Thank you. Thank you. ए काय करतोस तू? अरे यार भाई. अनुपमा मैम, एक फोटो करते मैम. 2 मिनट मैम. ये आगे मत जाओ, क्यों आगे जा रहे हो? मैम, look here, please. चुप अच्छे लगी फिल्म. कैरेक्टर्स के बारे में क्या करूँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? सब कैरेक्टर्स अच्छे हैं. एनी फेवरेट कैरेक्टर? विलन का कैरेक्टर थोड़ा मेरे को अच्छा लगा बहुत. इसमें स्टार्स की काफ़ी बात हुई है मूवी में, तो कितना स्टार देना चाहोगे मूवी को आप? 4 स्टार देंगे. और जैसे उसकी कॉन्सेप्ट कैसी लगी आपको, स्टोरी कॉन्सेप्ट? अच्छा, थोड़ा चेंज आ गया. काफ़ी टाइम से थोड़ी अच्छा थ्रिलर है यार. थ्रिलर बना. बॉलीवुड वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कहना चाहोगे? नहीं, ये फिल्म अच्छी बनाई है बॉलीवुड वालों ने. क्या कुछ कहना चाहोगे एट द एंड ऑडियंस को? ऑडियंस को कहूँगा ये फिल्म देखिए, आप फैमिली के साथ देखिए, और अच्छी फिल्म बनी है. साउथ की भी फिल्में भी देखो और ये बॉलीवुड की फिल्में भी देखो, अच्छी फिल्म है. थैंक यू. क्या कहना चाहोगे, मूवी कैसी लगी? वेरी गुड. सर, कुछ कहना चाहोगे स्टार के बारे में? अरे भैया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा. इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है मूवी को, आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? सर, कुछ कह दीजिए क्रिटिक्स के बारे में. सर, वेरी राजू श्रीवास्तव जी का ध्यान तो तापसी जी. राजू श्रीवास्तव तापसी जी, कुछ कहना चाहोगे? राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच. बुरा लगता है यार, क्या कहना चाहूंगी मतलब कि एक अच्छे कॉमेडियन, कोई ऐसी यादें. मूवी कैसी लगी आपको? हाथ में रख एक बार. जो हमारे बीच नहीं रहे, बड़े कॉमेडियन, आप कुछ कहना चाहोगे? कोई मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहोगे कुछ? क्या आपने उनके परिवार से संबंध करने की? अरे सारिक भाई, और मूवी कैसी लगी मैम? इधर हाँ, अलग है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा लगा. और वैसे भी मैं गुरुदत्त की फैन हूँ. मैम हियर. मेरे साथ वहीदा जी Look at the camera, ma'am. Please. कैमरा में मैम, राजू श्रीवास्तव की जी मैंने सवाल पूछा था. नहीं, मैं दुख में मीडिया के सामने बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल दुख है. मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की डेथ पे मैं बात. से संबंध करने की कोशिश की मैम? मैं उन्हें नहीं जानती थी पर्सनली. वही मैं फिल्म के बारे में कुछ कहो, एक सब कुछ कहो, ये कैसी लगी आपको फिल्म?
वहीदा जी कैसी लगी मूवी? एक वर्ड बोल दो। बस अभी क्यों आ गए? लुकिया प्लीज। राइट में मैम जावी जी बहुत पसंद आई है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग व्हाट आई सॉ। आई लव बाल्की सर्स वर्क पर बहुत मजा आया है। मतलब सब चुप हो गए पिक्चर देखने के बाद। मैम आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत सब लोगों को हंसाया, बहुत रुला के गए। सो इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक मोमेंट एंड वी विल मिस हिम फॉर लॉन्ग। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो, कोई ऐसी यादें? मैं बहुत फॉलो करती थी उन्हें। आप अंटिल लाइक इंस्टा सोशल मीडिया पर भी बहुत डालती थी, तो एवरीथिंग ही डिड वी जस्ट गॉट सो मच जॉय टू। एंड लास्ट कुछ ऐसी बातें या फिर कोई आप मुलाकात हुई जो आप बताना चाहो? हम एक्चुअली एक बार एक कुछ अवार्ड शो में शायद मिले थे एंड आई ऑलवेज टोल्ड हिम हाउ मच आई वाज अ फैन ऑफ हिज। थैंक यू। थैंक यू। So what do you want to say about the show? वंडरफुल मूवी है, देखनी चाहिए और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी मैं सबसे कहूँगी कि एक बार देखनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के ऊपर है, अपने क्रिटिक्स के ऊपर है, तो वही बहुत अच्छी है। मतलब पैसा वसूल है। क्रिटिक्स की बात करी थी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे कॉन्सेप्ट के बारे में? कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। मतलब आपको थ्रिलर मिलेगा, सस्पेंस है और जो ड्रामा चाहिए वो है मूवी में। और कैरेक्टर्स, आर्टिस्ट, मसाला है। और मूवी को कितना स्टार देना चाहोगे एट द एंड? आई वांट टू गिव यू 4 स्टार, 4.5। थैंक यू। रुके ना कुछ कहना चाहोगे चुप के बारे में? सुपर मूवी है, इट्स अ गुड थ्रिलर। एंड कैरेक्टर्स एंड ऑल? कैरेक्टर सुपर है, सनी देओल इज सुपर, दुलकर सलमान सुपर, श्रेया सुपर, इट्स अ वेरी वेल मेड गुड। स्टार की बात करें तो आप कितना देना चाहोगे? 5 आउट ऑफ 5? मुझे इधर तो स्टार नहीं चाहिए, लेकिन फिल्म में काफ़ी अच्छी मूवी है और सब लोग 4 या 5 स्टार जरूर मिलेंगे। आर बाल्के की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। थैंक यू सर। मत जाओ यार। अच्छी फिल्म लगी मुझे, अच्छी फिल्म लगी। सर आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, उसके बारे में बहुत दुखी बात है यार। अच्छे दोस्त थे, अच्छे इंसान थे, काम भी साथ में किया है, अक्सर मिलते रहते, बहुत दुखी बात है। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना? अभी तो यार अभी इमीडिएटली ये पिक्चर देखने जैसी याद नहीं आ रही है। उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। आज उनके फैमिली के साथ कुछ बातचीत हुई या फिर? नहीं, मैं अभी आया हूँ ना, मैं कहीं बाहर था, मैं बात नहीं कर पाया, मैं करूँगा।
थैंक यू। ओ बाजी अशरफ अली खान आराम से सर काफी अच्छा रिस्पॉन्स क्रिटिक्स को लेके काफी अलग मूवी है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स आया? कुछ नहीं, वो लोग देख रहे हैं, वो खुद इसके क्रिटिक बनेंगे। सर आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, उसके बारे में कुछ? बहुत ही अच्छे आदमी थे, जबरदस्त। आपकी कोई मुलाकात ऐसी? थोड़ा साइड ए पंकज भाई निकाल इसको। आनंद सर काफी अच्छी ट्रेलर, आपको कैसी लगी? मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत जेन्युइनली इन्जॉय की। इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट कंटेंट क्रिटिक्स को लेके आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिल्म मेकर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, और मेरे को लगता है इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इट्स जस्ट नॉट अबाउट क्रिटिक्स एंड फिल्म मेकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये क्लियर करने के लिए कि ये रिश्ता क्या है। सो इट्स अ वेरी। आनंद सर आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, काफी अच्छे कॉमेडी, उसके बारे में कुछ? कितनी दुखद की बात है। बिल्कुल दर्द है, जो हमें इतना हंसाते थे अब नहीं है, और उन्हें मिस करेंगे, हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। वो है पेन, वो रहेगा। एंड सर कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करते हो आज, कुछ उनके घर वालों से बातचीत आपकी? कुछ मेरी बात नहीं, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, बट बीइंग पार्ट ऑफ दिस मैं ये मान सकता हूँ कि ये दर्द हमारे साथ है। थैंक यू ए बूम आगे जा 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 आगे जा। ए नीचे नीचे क्या कर रहे हैं जी, कैसी लगी आपको मूवी? 5 out of 5 स्टार दे दिया आपने, स्टार्स दे दिया। so happy to watch very happy और क्योंकि गुरुदत्त साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और कुछ झलकी उनकी देखने को मिले, और दुलकर के साथ मतलब आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन स्पेस विद हिम एंड नाउ टू वॉच हिम, पहले राम और अब डैनी के तौर पे, इनक्रेडिबल एंड सो हैप्पी टू सी टू वॉच सनी सर बैक। आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, वेरी हैप्पी एंड बाल्की सर इज़ अमेजिंग। कुणाल जी, राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे, कितनी दुखद की बात है। बहुत दुखद की बात है, बिकॉज उन्होंने बहुत हंसाया हमें, और आई रिमेंबर जब you know low, whenever we used to feel low, we used to go watch his shows and comedy, and instantly वो हमें हंसाते थे, और हमारा जो you know it's very bad. Any last memory that you want to share? कोई ऐसी लास्ट मुलाकात आपकी? मेरी unfortunately उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, but it's really sad that you know he's not with us today. Thank you ma'am. Thank you. आराम से आराम से आराम से नहीं कौन सा चैनल?
सॉरी थैंक यू। इतने सारे माइक पकड़ूँ मैं, कैसे पकड़ूँगी? नहीं वो पकड़े ओके थैंक यू। मुझे कहना है कि ये बहुत ही अलग मूवी है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ देखने मिला है, तो एवरीवन शुड डेफिनेटली वॉच इट। स्टार के बारे में बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे? मैं तो 4 दे दूँगी, मुझे डर भी लग रहा है लेकिन अच्छी भी थी इसलिए। पाजी आ जाना, पाजी बच्चों को आगे काफ़ी अच्छा रोल है आपका। ट्रेलर के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स आपके परिवार से आया है? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाल्की सर एक जीनियस है, और मैं होप करता हूँ कि कल फिल्म रिलीज़ हो रही है और जो हमारे सिनेमा घर हैं वो भरे रहें और सारे लोग इस फिल्म को देखें। It's genuinely, I think, a great film and edge of the seat thriller, and I really hope that the film does well for all of us and for the entire film industry. क्रिटिक्स को लेके आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है क्रिटिक्स लाइक? नहीं, I think the film has a very balanced point of view for the critics. I think एक क्रिटिसिज्म एक्टर के लिए या किसी भी फील्ड में किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, लेकिन कोई भी क्रिटिसिज्म को बायस नहीं होना चाहिए या एक पर्सनल लेवल पर नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। एनीथिंग दैट यू क्रिटिसाइज और एनीवन दैट यू क्रिटिसाइज शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अगर मैं एक्टर की बात करूँ तो एज एन एक्टर आई शुड लर्न फ्रॉम इट एंड नॉट फील बैड अबाउट इट, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। आपके डैड के काफ़ी अच्छे दोस्त, बिल्कुल करीबी दोस्त थे, बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे? आई थिंक क्या कह सकता हूँ मैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही वाज सो यंग, इतने यंग थे वो, एंड ही इज़ गॉन, एंड इट्स अ वेरी सैड डे ऑफ कोर्स फॉर द फ्रेटर्निटी, एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड ही विल ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट्स फॉरएवर। कितना बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री का? बहुत बड़ा लॉस है यार। ही इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ कॉमेडी, जो एक पुरस्कार हमने उन्हें दिया था, और यही है यार कि लिव योर लाइफ एवरी मोमेंट। कल क्या हो जाए, कल कोई रहे ना रहे हमें नहीं पता, तो टॉक्सिसिटी से थोड़ा दूर रहें और लोगों को प्यार बांटें, प्यार करें लोगों को। ऐसी कौन सी चीज़ आप मिस करते हैं आप राजेश श्रीवास्तव? सॉरी सर, ऐसी कौन सी चीज़ आप मिस करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी की? आई थिंक द फैक्ट दैट मैं उनसे 2-3 बार मिल भी चुका हूँ, द फैक्ट दैट राजू सर इतने ग्राउंडेड थे और इतने अच्छे थे टू टॉक टू, एंड वेरी रिलेटेबल, जैसे आप हैं मैं हूँ, उनसे बैठकर कभी भी बात कर सकते थे और लंबी बातें करते थे, हंसाते थे सबको हमेशा, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस दैट अबाउट हिम। क्या आपने या फिर आपके डैड ने उनके परिवार से कुछ मुलाकात की? डैड तो हमेशा उनके साथ फ़ोन पर, परिवार के साथ फ़ोन पर ही थे, और ट्विटर पर डैड ने हमेशा जिस दिन से वो बीमार पड़े और आज तक हमेशा लोगों को अपडेट ही किया है। और कुशल श्रीवास्तव आई थिंक उनके कज़न है जिनके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की थी, तो आई वॉज इन टच विद हिम, एंड कुछ अफवाहें उनके बारे में फैलाई गई थी जो बहुत अनफॉर्चुनेट थी पहले, लेकिन बट दे आर कमिंग बैक। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई फील वेरी वेरी ऑफ कोर्स अ ह्यूज लॉस फॉर द फैमिली एंड फॉर द एंटायर कंट्री। थैंक यू ऑल। मेरा दोस्त मेरे को छोड़ देगा आज। So, what do you want to say about चुप? मज़ा नहीं आया। सोचा था मज़ा आएगा। कहानी बहुत यूनिक है, एक ऐसे इंसान की जो सीरियल किलर है, जो फिल्म क्रिटिक्स को मारता है, तो कहानी बहुत यूनिक है, बट एग्जीक्यूशन पे काफ़ी फॉल्टी लगी मुझे। तो जो मज़ा मैं चाहती थी, मैं जेन्युइनली चाहती थी कि फ़िल्म मुझे बहुत एक्साइट करे, एंगेज करे, वो नहीं की, स्पेशली टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ वाज स्टिल आई थिंक अ लॉट मोर फन। सो कैरेक्टर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कैरेक्टर्स आई थिंक सबसे मीठी कैरेक्टर इज़ दुलकर्स। जो मुझे दुलकर की परफॉर्मेंस थोड़ी इनकन्सिस्टेंट लगी, कभी अच्छे कभी थोड़े अंडरवेलमिंग लगे। कभी कभी लगा कि शायद उन्हें बहुत एफर्ट लग रहा है इस पार्ट के लिए। सनी देओल बहुत मज़ेदार लगे। सो बॉलीवुड का ये मूवी भी नहीं चलेगा आपके रिव्यू के हिसाब से? यार ऐसे नहीं होता है, मेरे रिव्यू के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा, बट फिल्म चलेगी ना चलेगी विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द ऑडियंस। कल बहुत लोग जाने वाले हैं, नेशनल सिनेमा डे है, आई थिंक परसों, सॉरी, तो 75 रुपये की टिकट है और ऑलरेडी बहुत एडवांस है चुप का, जितना मैंने पढ़ा है। तो अच्छी बात है, लोगों को जाना चाहिए। एक सिनेमा, हिंदी सिनेमा के बारे में भी बहुत कुछ बताती है ये फिल्म। बहुत पर्सनल कहानी भी है, सिनेमा पे भी कमेंट्री है, फिल्म क्रिटिसिज्म क्या होता है उसके बारे में भी है। तो
ये डेफिनेटली ऑडियंस विल डिसाइड वेदर इट रन्स और नॉट, बट या दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट. स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? आई थिंक 2.5. थैंक यू. सब लोगों को आई थिंक पसंद आ रहा है फिल्म और अच्छी एक्टिंग थैंक यू. कुछ कहना चाहोगे शेयर करना स्क्रीनिंग? अभी 23rd को फिल्म आ रही है और सनी सर के साथ और पूजा मैम और श्रेया इतने टैलेंटेड एक्टर्स और मेरे चाइल्डहुड हीरोज़ हैं. उनके साथ काम करने में बहुत आई फील वेरी ब्लेस्ड और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. आज राजू सर हमारे साथ नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा? I genuinely was a fan. इतने positive थे, it made so many people laugh. It's a big loss and yeah, sad day for everyone. कोई ऐसी मेमोरी जो आपकी कोई ऐसी यादें? I can't recall right now, but probably I think on comedy nights or something he was there. Dulquer, you love critic or you hate critic? You love critic or you hate critic? What's your personal? I have a love-hate relationship with them. And right after Sitaramam, this is an opposite character which Yes. you are playing in the Yeah. film. You are playing. I don't want to say what you are playing, but like if I ask you Sitaramam or Chup, what would you like? Yeah, I can't. It's like picking between my babies. Okay. Thank you. अमेजिंग ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है, आपको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप कुछ कहना चाहोगे? जी मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि 22 साल के बाद में मुझे बाल्की सर ने वापस बड़े पर्दे पे पेश किया है. एंड आई थिंक ये 2021 मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक साल था, क्योंकि बॉम्बे बेगम्स थैंक्स टू अलंकृता श्रीवास्तव और उसके बाद में चुप. राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच नहीं रहे जी, बहुत बड़ा लॉस है जी. आप कुछ कहना चाहोगे मैम? बहुत बड़ा लॉस है. कोई ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहोगे? जी अनफॉर्चुनेटली नहीं है साथ में. Well, मैं नहीं जानती थी उनको, मगर पर्सनली नहीं जानती थी, मगर ऑब्वियसली उनका काम हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा लॉस? जी हम चुप के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं. पूजा मैम, मैं अगर हाँ, आपसे हम बात करूं तो एक प्रॉब्लम क्या है कि हम एक साउंड बाइट सोसाइटी बन गए हैं और फिल्म के बीच में आप किसी के लॉस के बारे में बात करेंगे तो ये ज्यादती हो गई उनके साथ में. हाँ, तो उसके बारे में अलग से बात करनी चाहिए ना. राइट. वेल मैं अगर चुप की बात करूं मैम तो एक डायलॉग है आपका जो बहुत ही रिलेट करता है आपसे, जो रियलिटी की फिल्म इंडस्ट्री के रियलिटी की बात की गई है. जी. वेल व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग? कौन सा डायलॉग? जो रियलिटी आपने बोला है कि लोग जो एक्सप्रेस जो सोचते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, विच इज़ द क्रिटिक्स के बारे में बेसिकली, तो उसके बारे में क्या कहना? आई थिंक द फिल्म हैज़ सेड इट ऑल. आई थिंक कि बाल्की सर ने चुप के थ्रू हम सबको एक आईना दिखाया है और आई थिंक क्रिटिसिज्म या अपनी राय देना बहुत आसान काम है, मगर जैसे डायलॉग है इसमें कि फाइनली एक आर्टिस्ट का जो दर्द होता है वो सबसे बड़ा फ्यूल होता है. तो हमारी फेलियर्स, हमारी जब भी हम जलील होते हैं वो हमें एक्चुअली बनाता है. एंड आई थिंक ये फिल्म वही कह रहा है. कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ में एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है? आप कुछ कहना चाहोगे? जी मैं तो 22 साल के बाद आपके पास वापस आई हूँ तो आई गेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं. थैंक यू.